हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। शांति चाहक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। दिव्य जीवन हो हमारा, तेरा यश गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच रेखाबेन અને મયુરભાઈ। અને હવે આપણા પ્રમુખ શ્રી મુકુંદભાઈ મહેતાને રિક્વેસ્ટ કરું કે એમના સ્વાગત ઉદ્બોધનથી આજના કાર્યક્રમનો પ્રારંભ કરે। મુકુંદભાઈ। Thank you, Pankajbhai, and thank you, Mayurbhai and Rekhaben, for a very pretty prayer. Thank you for that one. Good morning, friends, and welcome to Indo-American Senior Citizen Center of New York's weekly Thursday meeting. I hope all of you are doing fine. Today we have a very interesting program and a well-known speaker. And the speaker is, as you know, Mr. Ashok Vyas. Who doesn't know him? He's a versatile man. He has interviewed a countless number of personalities. He's a program director of ITV Gold. As such, he does not require any introduction, but as a protocol, I will just read out his profile. He has an excellent academic education. He has masters in English, masters in economics, MBA in marketing, and postgraduate diploma in journalism. He considers being disciple of Swami Sri Ishwarananda Giriji Maharaj as the real source of life education. Bharat Gaurav Awardee, chairman of Insight for Creativity LLC, and he has produced TV commercials, documentaries, and corporate films. Founder of YouTube channel Haramba Studio, produced a series of 351 episodes on Bhagavad Gita and several interviews focused on mental well-being and spiritual awareness. Media campaigns for several clients on print as well as on social media and TV. As a writer, contributed to the South Asian Times, Newsday, One Word Under God, the Indian Panorama, and Hum Hindustani. He is a program director of ITV Gold, and he joined in December 1998, presented Hindi news for 3 years, interviewed top personalities from different fields, created diverse shows, including social,
political, psychological, religious, Hindi film-based, musical, medical, and immigration shows, as well as shows for kids and literary shows. Worked on 3 weekly programs for TV, ITV, literally Jeet Gaye Ek Geet, Kids Kingdom, and literary Shabbat Star. Produced a weekly devotional show for 18 months, Shirdi Sai Vishwa Sai. Presently, the interview-based Wide Angle with Ashok Vyas is shown twice a week. A discussion-based Insight Tonight with Ashok Vyas is also aired in prime time on ITV Gold, presenting Vision Asia twice a week. May 1995, Shogun Television, Mumbai, and freelance writer, translator in Mumbai. Translated episodes of Batman and several American shows for UTV. All India Radio, Jodhpur joined in September 1982, produced, participated, wrote thousands of programs, including plays, features, talks, talk shows, show for kids, shows for women, Gandhi Charcha, based on Mahatma Gandhi's literature, and Vivek Vani, based on Swami Vivekananda's literature. He wrote and presented every day for a year stories for kids in a show, Lo Bachcho Suno Kahani. His specialties: he is an interviewer, he is a writer, he is a poet, he is a video cameraman, editor, Hindu priest, and speaker. My goodness, what a glittering profile he has. And he achieved all this in one life at a young age. I think nobody can achieve so much of a work within a short period of time. So without much ado, I will request Ashok Vyas to be on the screen. Welcome, Ashok ji. Welcome. Namaste. Namaste. We have to learn a lot from you. And today's subject is Mera Man, Mera Mitra, my mind, my friend. Here is Mr. Ashok Vyas. नमस्ते. नमस्ते के साथ में मैं करके शुरू करूंगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा फ्लो में आ जाऊंगा, क्योंकि फिर जब मन संवाद के साथ प्रवाहित होने लग जाता है तो बात निकल कर आ जाती है. तो पहले थोड़ा अनौपचारिक रूप से बात में जब मैं भी ये परिचय सुन रहा था तो एक तो मैं कृतज्ञता से भरा हुआ था कि मुकुंद जी ने इतना सब पढ़ने की, आपके साथ बांटने का ये जो प्रेम श्रम किया, उसके लिए उनका भी आभार. आप मेरे कुछ ध्यान से सुन भी रहे होंगे, और इसमें जूम पर ये फायदा होता है कि आप नहीं भी सुन रहे हो तो पता नहीं लगता है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि आप सुन रहे थे, तो आपका भी अतिरिक्त आभार है. और हमारा जो मन होता है वो किस बात को कब सुनना चाहे, उसको लेके हम कहीं उपस्थित या अनुपस्थित हो जाते हैं. उपस्थित होने के साथ हमारा उस स्थान विशेष पर होने के साथ जो आनंद है वो भी जुड़ा हुआ है. और मेरा मन मेरा मित्र विषय जो मुकुंद जी ने स्वीकार किया, उसके पीछे एक लाभ यह है कि मैं जो भी बात कहूंगा वो प्रासंगिक ही होगी, क्योंकि संसार में सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे मन के साथ में जुड़ी हुई है. तो कैसे मन नहीं लगता है तो फिर आप वहां से भागने के बारे में सोचते हो, और मन लग जाता है तो एक रसमयता से सीखने का जो क्रम है वो भी बढ़ जाता है. और मनोरंजन शब्द भी आप सब परिचित हैं कि भाई मन का रंजन नहीं होता है. तो ये जो कुछ संसार में हम इतना सब देख रहे हैं जो फिल्मों के द्वारा या अन्य कला माध्यमों के द्वारा हम तक आता है, वो सब भी अर्थपूर्ण नहीं रहे. अब मैं आपको अपनी दादी के स्मरण से बात को आगे बढ़ाऊंगा. मेरी दादी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, हम उनको काकी जी कहते थे, और उनका एक वाक्य जो हमने कई बार सुना और कई समय पर वो जीवन में याद आता रहा, वो था, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत. तो मैं काकी जी को कभी ये उन्होंने मुझे कहा नहीं कि ये कबीरदास जी के दोहे में से है, मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली. मुझे आज जब मैं ये इस संवाद की लिए तैयारी कर रहा था तो मैं कबीर के कुछ दोहों की तरफ, मन के ऊपर जो खास करके केंद्रित हैं, मैं ध्यान दे रहा था. तो उसमें एक दोहे का ही ये पहला पंक्ति है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत.
अब ये बात है कि मन को हम हार क्यों देते हैं, मन को हम कैसे जीते हैं, उसके बारे में हम मिलजुल के साथ साथ बात थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। और मैं 10-15 बार कहूंगा कि भाई बहुत मैं आभारी हूँ, क्योंकि ये ऐसा होता है कि जिसको मन मुताबिक काम करने का मौका मिल जाता है ना, तो उसके आनंद का जो भाव है वो बना रहता है। ऐसे भगवान की कृपा से मैंने जो कार्य किया, हालांकि एमबीए इत्यादि के साथ मेरा मीडिया से इस तरह जुड़ाव जैसा रहा है, वो नहीं होके मैं किसी और रूप में शायद सक्रिय होता, पर ये सबसे मिलना जुलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो पुल बन जाता है एक मन का दूसरे मन से संवाद करते हुए, वो मुझे एक विशेष प्रसन्नता से भर देता है। तो कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनको लगे कि बात करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, वो मेधावी है, ऐसा नहीं है कि वो मेधावी नहीं है। तो एक मन ऐसा होता है जिसको चित्रकला में रुचि आएगी, एक मन होगा जिसको संगीत में रुचि आएगी, एक मन होगा वो बहुत अच्छे व्यंजन बनाएगा, और एक मन ऐसा होगा जो बहुत रुचि के साथ में तरह तरह के व्यंजन खाएगा। अच्छा, एक मेरे मन की ऐसी आदत है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो मुस्कुराते नहीं हो ना, तो मैं सोचता हूँ कि क्या है जो किया जाए कि उनकी मुस्कान आ जाए। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सब मुझे एक साथ सबके दर्शन हो भी नहीं रहे हैं। तो मुस्कान जो है वो, ये हमारा जो चेहरा है, वो भी हमारे मन के भावों का दर्पण होता है। कहते हैं वही कि तोरा मन दर्पण कहलाए। तो कई बार ऐसा होता है, हम अगर छलिया हैं तो हम मन पे मन के अंदर कुछ है, दिखा कुछ और देते हैं। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई बातें कही गई, जिसमें कहा गया मन कर्म और वचन एक होते हैं, तो एक जैसा अनुनाद बनता है हमारा अपने साथ में, उसमें हमारा पूर्णता के साथ जो संबंध है वो खुल जाता है। मन की बात को लेते हुए अगर हम देखें कि वो एक जगह पे ठहरता नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। अभी ये अशोक व्यास बोल रहा है, इसके बारे में देवेंद्र जी गाएंगे, उस तरफ मेरा मन अधिक है, और आज तो मैं यहाँ आ गई आ गया अब, लेकिन मुझे तो वो करना था। ऐसा भी ऐसा हो जाता है। हम जहाँ होते हैं वो मन हमको वहां से कहीं और ले जाता है, और इतने प्रेम से ले जाता है पता भी नहीं लगता है। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, हम अपनी यात्रा करके आ जाते हैं। अभी यहाँ बैठे हैं सैन फ्रांसिस्को में, बेटा है बेटी है, उसके साथ में उसके बेटे का अभी जन्मदिन गया है, तो हमने कितना आनंद किया। ऐसा मन वहां ले जा सकता है। या हम भारत में थे तो कितना अच्छा होता था, और वहां पर हम बच्चों में गुल्ली डंडा खेलते हुए, एक बार ऐसा हुआ कि वो गुल्ली मेरे माथे पे लग गई, लेकिन मैंने उसको डांटा नहीं। ऐसा कोई भी बात किसी भी समय में, तो साहित्य में इस बात के लिए अंग्रेजी भाषा में खास करके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा कि मन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसको लेके उन्होंने उपन्यास बनाए। और मन की बात को लेके मैं मन में जो आए वो बोलते बोलते भी बोलूंगा तो मुझे आनंद आएगा, लेकिन मैंने थोड़ा सा सोचा कि एक व्यवस्था रहे। तो उस दृष्टि से सबको अपने अपने कुछ वस्तुएं संग्रह करने का जो शौक होता है, उसका संबंध भी मन से होता है। किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक होता है, किसी को बहुत सारे अच्छे अच्छे जो गहने हैं वो इकट्ठे, या नए नए कपड़े। मैंने पुस्तकें इकट्ठी करने का शौक रहा मुझे बचपन से, और उनको व्यवस्थित ढंग से रखना एक बड़ी चुनौती रहती है। परिवार वालों को भी लगता है ये घर है, लाइब्रेरी तो नहीं है, इतनी सारी किताबें हैं। पर एक बहुत बरसों पहले की एक किताब, मानसिक दक्षता, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई होगी, और राजेंद्र बिहारी लाल जी ने वो पुस्तक लिखी थी। उसका एक जो अध्याय मैं देख रहा था, तो उससे मुझे विशेष उत्साह आ गया। मुझे लगा हाँ, एक स्वरूप मिल गया मुझे कि मैं बात को कहूंगा तो वो कहाँ लेकर जाएगी। और उससे जब आप पुनः चिंतन करते हो किसी विषय पर, और एकाग्रता से आपका मन उस विषय के साथ जुड़ी हुई बातों के लिए भागने लग जाता है, तो आपको एक रस मिलने लग जाता है, उसमें एक आनंद आने लग जाता है, उसमें आपको एक पूर्णता और एक सार के दर्शन होने लग जाते हैं। तो मैं मुकुंद जी का और आप सबका आभारी हूं कि मुझे नए सिरे से उस सार तक जाने का अवसर इस संवाद के निमित्त से प्राप्त हुआ है। पर क्या होता है, मैंने जैसे पहले का अपना अपना मन होता है, मेरा मन क्या है, कविताएं लिखने में बहुत ज्यादा है। तो जब मैं अगर कोई बात कहने के लिए भी चिंतन कर रहा होता तो पहले वो कविता के रूप में आने लग गया था। तो मैंने कुछ लिखा था, वो फिर आगे तक गया नहीं हूं, तो आप घबराइएगा मत। लेकिन प्रारंभ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि मैं ऐसे अपना संबोधन प्रारंभ करूंगा। तो मैं मुस्कान तक जाने के लिए भी ये बात कह रहा हूं, अपना घबराइएगा मत।
समय की जो सीमा होती है ना, वो वक्ता के लिए एक तरह से सीमा रेखा है कि भाई इसके बाद में बंद हो जाना है। तो नॉर्मली अभी तो हमारे पास ये आपके लिए सुविधा है कि आपने कहा भाई 10:30 से 12 का समय है। कई बार होता है कि ये 7 मिनट बोलेंगे, तो वो 5 मिनट तक भूमिका बना के, मैंने भी ऐसे किया हुआ है, भूमिका बना के कहता है कि मेरा टाइम ना अब शुरू हो रहा है। वो बात यहाँ पर तो होगी नहीं, लेकिन एक कविता की तरफ बढ़ते हैं कि जब मन नहीं अपने हाथ, तो बंदा हो जाए है अनाथ। अपने होने की लय का सार रस जहां से आए है, वो जीवन में हानि लाभ यश अपयश करवाए है। जिसको मनाने में पूरी तरह जुटा हुआ है जहां सारा, वो हमारे परिचय और निर्णय का मूल मन कहलाए है। वो जो मैंने पहले कहा था, मेरी दादी का कथन सदा रहता है स्मरण, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। यूं उपलब्ध है मन को मनाने की बहुत सारी रीत, पर आसान नहीं मन को मित्र बनाना। दुनिया के मेले में भटकने से इसे बचाना। यूं देखो तो मन में है मनोरंजन का अपार खजाना, और मुश्किल भी है इसको मुक्त रखकर आगे बढ़ते जाना। पर मन पर हुए अनुसंधान से बनी है आस, जानना है मन को मित्र बनाने के लिए क्या करें अभ्यास। तो अब चूंकि ये कविता है, जो तालियां बजानी पड़ रही है, तो मुझे आवाज नहीं भी आए तो मुकुंद जी आपका हाथ तो ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। तो मन और मित्र, और एक बात और मैं ऐसे थोड़ा पंकज जी से भी अनुमति लेके और मुकुंद जी से, तो कभी कभी आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहें बोल दें, किसी बात पर टोकना भी चाहें तो टोक दें, रोकना चाहें तो रोक दें। उससे क्या होगा कि एक निरंतरता का जो भाव है वो जागृत रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये भी तरीका नहीं है पता करने का कि कौन सो गया है कौन जाग रहा है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा आनंद आ जाता है। तो इतना कह के मैं 1 मिनट के लिए मुकुंद जी को अनम्यूट करने के लिए कह रहा हूं। मैं ठीक जा रहा हूं मुकुंद जी? आपकी आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अनम्यूट अनम्यूट कर दो मुकुंद भाई। मुकुंद जी अनम्यूट नहीं हुए। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ठीक सब लोग सोए नहीं, सब लोग जाग रहे हैं, आपसे ठीक है। बराबर देख रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग वेरी एक्टिव इंटरेस्ट इन यू। अच्छा किया। तो फिर हाँ, इस तरह से क्या होता है, छोटा बच्चा होता है ना, उसको कहीं हाँ बेटा ठीक जा रहे हो। तो मुकुंद जी से मैंने वो अपने लिए आश्वस्ति ले ली। फिर बात को आगे रखते हुए, जैसे मैं बात कर रहा था राजेंद्र बिहारी लाल जी की, उनके संदर्भ को लेते हुए मैं बात को थोड़ा अपने बना रहा हूँ। पर बनाने के पहले भी मुझे ऐसा लगा कि एक कहानी से थोड़ा और आपके साथ जुड़ा जाए। और कहानी आप सबने सुनी हुई है, और हम उसको मन के साथ जोड़कर देखेंगे। वो कहानी है जादुई चिराग वाली। आपने सुना होगा, एक जादुई चिराग था, वो चिराए तो जिन्न आ जाता है। तो जिन्न जब आ जाता है तो कहता है हुक्म करो मेरे आका। तो वो कहता है कि भाई यहाँ पे मेरे को इतनी अशर्फियां चाहिए, वो अशर्फियां लेके आ जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा महल चाहिए, तो वो तो 1 मिनट में बना देता है महल। फिर कहता है जो कम। तो इसमें जिन के साथ में ये कहानी जहां मैंने सुनी थी, वो बताते हैं कि इसकी जिन की खास बात ये है कि उसको आप बिजी रखोगे ना काम में, तब तक तो ठीक है, नहीं तो कहता मैं तेरे को खा जाऊंगा। तो ये जो मन हमारा है वो जिन की तरह है। मतलब हम उसको अपनी तरफ से कुछ रगड़ के नहीं, हमारा जीवन है, हमारे को मन उस जिन के जैसा मिला है। वो कहता है कि हाँ अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो जैसे उस कहानी में ऐसा था, उन्होंने फिर भाई उसने कहा ये मुझे खा जाएगा, तो किसी समझदार आदमी को मुकुंद जी को फोन लगा के पूछा कि मैं इसका क्या करूं। तो मुकुंद जी ने कहा इसको कह दे कि एक लंबा सा पोल बना दे। तो लंबा पोल बनवा दिया। कहता अब इसको क्या है कि ऊपर नीचे इस पे आता जाता रहे जब तक मैं तुझे रुकने के लिए नहीं कहूं। तो फिर मुकुंद जी से बात हो गई थी, वो काम चल गया उसका। इसी तरह से मुकुंद जी को आप यूं समझ लीजिए कि ये संकेत है कि जो ज्ञानी जन है, जो महात्मा है, वो हमको बताते रहते हैं कि भाई मन जो है ये जिन का करे क्या, कैसे करे, तो उसका क्यों करें। उसके बारे में जो मानसिक दक्षता पुस्तक है, उससे लेके थोड़ा मन को और समझने की कोशिश करते हैं। मन हमारा कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से हमारा जो आउटपुट है जीवन में वो बनेगा। मन हमारा कैसे काम कर रहा है उस बात को उन्होंने एक गाड़ी के साथ तुलना करके कहा। तो गाड़ी अगर मर्सिडीज बेंज होगी, आप में से कुछ लोगों के पास में है,
कुछ के पास में टोयोटा भी हो सकती है, बहुत सारे, मैं गाड़ियों के ब्रांड पूरे नहीं कहते, सिर्फ एक कुछ गाड़ियां बाहर से बहुत ही अच्छी दिखती हैं, कुछ गाड़ियां अंदर से बहुत बढ़िया होती हैं, मतलब बैठे तो ऐसा लगता है कि एकदम आप सोफा ऐसा है कि जैसे कोई सिंहासन पर बैठ गए हों। लेकिन अगर उस गाड़ी का इंजन काम नहीं कर रहा है तो जो आराम से आपको बिठा रही है उस गाड़ी के बजाय जो चल रही है वो गाड़ी ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। तो गाड़ी के दृष्टि से अगर हम बात करें तो तीन चीजें हो गई उसमें। एक तो उसका इंजन कैसा काम कर रहा है, दूसरी क्या बात हो गई कि उसके अंदर पेट्रोल है कि नहीं है। अब इंजन तो मस्त है एकदम, लेकिन अभी गैस के भाव बढ़ गए तो आपने कहा मैं कल डला दूंगा, कल कम हो जाएंगे भाव, ऐसा आपने पढ़ लिया था, तो अब जा रहे हैं लेकिन वो रास्ते में खत्म हो गए। तो इंजन का महत्व है गाड़ी में, पेट्रोल का महत्व है गाड़ी में, और साथ में चला कौन रहा है, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, अभी उसकी आंख में कोई फोड़ा हो गया, उसको दिख नहीं रहा है, वो कहीं बिड़ा नहीं दे। ये सारी बातें गाड़ी के संदर्भ से जैसे जुड़ी हुई हैं, उसको लेके उन्होंने फिर बताया भाई मन में जो है वो क्या क्या है। एक तो बातें ऐसी हैं कि कुछ शक्तियां मन की हम जन्मजात लेकर आए, यानी भगवान ने सबको ऐसा वरदान दिया है कि मन तो सबके पास है, और मन को आप कहीं लगता हुआ भी देखते हो और कहीं से हटता हुआ भी देखते हो। मन की शक्तियों के बारे में इतना अधिक भारतीय मनीषियों ने हमको बताया है, पर हम उसको ध्यान देते नहीं क्योंकि हमारा मन उसमें होता नहीं है। हमारा मन तात्कालिक रूप से जो हमें खींच लेता है उस तरफ चला जाता है। तो हमारी अंदर मन की जो शक्तियां हैं उसका भी हम ठीक ठीक परिचय प्राप्त करते नहीं है, क्योंकि हम उस तरफ मन से मन से मन को लगाने की बात है। तो मन अगर हम अपने मन के ऊपर लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। तो इस बात को लेकर जो साक्षी भाव की बात अध्यात्म दृष्टि से आ जाती है, या अपने मन पर ध्यान दिए बिना हमको पता ही नहीं चलेगा हम कैसा महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो दूसरे कहते हैं कि ये अच्छा है तो हम उसको अच्छा मान लेते हैं, सचमुच में हमने अनुभव नहीं किया, अनुभूति हमारी वो नहीं है, हमारी फीलिंग वो नहीं हो रही है। अब कोई पिक्चर या समझिए शास्त्रीय संगीत है, हमारा उस तरह का संस्कार बना नहीं कि हमने शास्त्रीय संगीत में रस लेकर उससे हम मन को कितनी उन्नत अवस्था पर जाने की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयास किया नहीं। हम गए क्योंकि फोकट में टिकट आ गया था किसी ने कहा कि ये अच्छा गाते हैं, आलाप इनका बढ़िया होता है, हम वहां जाके पहुंच गए। अब क्या है, हमने देखा ये पड़ोस में जो लेके आया वो तो बीच बीच में ऐसे करा, तो हमने भी कभी उसके साथ कर दिया। अंदर से हम सोच रहे यार खत्म हुए मैं घर जाऊं यार। तो लेकिन जब बाहर आए ना तो हमने भी उनकी तरह तारीफ कर दी और तालियां भी बजाई थी, लोगों के सामने भी ऐसा हो गया कि इसको शास्त्रीय संगीत में बड़ा प्रेम है, तो अगली बार और बुलाएगा कोई किया शास्त्रीय संगीत में। लेकिन हमको पता है हमने मन से उसमें हमने उस भाव को छुआ भी नहीं, वो जो प्रस्तुति हो रही थी उसके साथ जो एक नाद बन रहा था वो हमारे लिए खुला नहीं। तो अगर हमने ऐसा छल किया अपने साथ में तो हमने अपना भी नुकसान किया, औरों का क्या हुआ उसको तो छोड़ देते हैं, हमने अपना नुकसान किया, क्योंकि वहां पे जो प्राप्त हो रहा था वो भी नहीं किया, अन्य स्थान पर हम जहां मन लगता था वहां भी नहीं गए। तो बात मुख्य क्या है कि जो हमारी जन्मजात शक्तियां हैं मन की, उसको पहचानने के लिए कई बार, अब थोड़ी देर के लिए अब हम सब बुजुर्ग हो गए, भाई मैं भी बच्चा हूँ मुकुंद जी और आप में से कईयों के सामने, लेकिन मैं अपनी आयु नहीं भी बताऊं तो भी बता ही देता हूँ, मेरा मन हो गया मैं 60 के पास पहुंचने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता है खुद को कि मैं 60 के पास पहुंच रहा हूँ, लेकिन ये जब डेट ऑफ बर्थ पढ़ेंगे तो पता लग जाता है कि अरे तो अगले साल 60 का हो जाएगा भाई। पर वो बचपना तो नहीं कहना चाहिए, ये बच्चा जो है वो मेरा जागृत रह गया। तो उस बच्चे की बात को लेते हुए मैं ये कह रहा था कि कई बार हमारे साथ में जो बच्चे हैं, मतलब अभी बच्चे हैं जो सचमुच आयु की दृष्टि से, उनका मन क्या कहता है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देके सोचते हैं इसको तो डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि डॉक्टर के तो पैसे बहुत मिलेंगे और उसका जीवन सही हो जाएगा। ऐसा हो भी जाता है, मतलब उसकी व्यवस्था की दृष्टि से। पर वो जो यात्रा करता है या करती है, चाहे एक डॉक्टर बनने के लिए या जो भी प्रोफेशन माता पिता के रूप में हमने उसके ऊपर लाद दिया, तो सफल हो भी जाता है, लेकिन उसके अंदर एक हिस्सा होता है, उसको लगता है कि नहीं कुछ है जो मेरे जीवन में रिक्त रह गया, कुछ है जो अपूर्ण रह गया। तो मन की शक्तियों को जानने के साथ साथ उनको जागृत करने के लिए हम अपनी तरफ भी ध्यान दें, औरों को भी उसमें सहायता करें, वरना हम
टूट फूट से भरे हुए मनुष्यों के निर्माण की तरफ बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और आयाम आ गया है जो कि ये पुरानी पुस्तकों में नहीं है, वो कि अब जैसे हम भी सोशल मीडिया टाइप ये जूम के द्वारा जुड़ रहे हैं, तो इसमें क्या मानव का मानव से संबंध होना, उसका जो एक आनंद है वो पहले से उनके लिए सहज रूप में सुलभ है नहीं। तो उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन बात के आगे जन्मजात शक्तियां जो हमारी है उनको हमें स्वयं भी पहचानना चाहिए, औरों को पहचानने में भी मदद करनी चाहिए। दूसरी बात क्या आई कि जो काम करने की हमारे अंदर लगन होती है और जो भावना होती है उसको लेके काम किया जाता है। अब जैसे कोई वक्ता को किसी ऐसे विषय पर बोलने के लिए कहा जाए, उसमें उसको रस नहीं आता हो तो भी उसके ऊपर एक बाध्यता है, तो वो कैसे भी करके तैयारी कर रहा होगा, बोल रहा होगा, लेकिन वो करते हुए उसके अंदर उतना उत्साह नहीं होगा। और कोई ऐसा कार्य जिसमें कि आपकी भावना जुड़ी हुई है तो आपको आनंद आएगा। अब जैसे आप सब बैठे हैं, मुकुंद जी कई वर्षों से, पंकज जी, और मैं सब नाम, डॉक्टर नलिनी जी के और वीरेंद्र जी के भी मुझे दर्शन हुए, तो आप जो जो कर रहे हैं उसमें आपका उत्साह होता है, तभी आप उसको निरंतर कर पाते हैं। अगर उत्साह नहीं होगा तो आप साथ साथ बैठ के ऐसे किसी स्थान पर निरंतर सबको जोड़ें, उसके लिए भी बहुत एक तन्मयता चाहिए, एक श्रम चाहिए। वो जब होने लग जाता है तो सहज हो जाता है, तो हमको लगता नहीं कि हमने मेहनत की। तो हमको मेहनत करना नहीं लगना बहुत अच्छी बात है, उसमें हमको आनंद आ रहा है, पर उसके पीछे हमारा उस कार्य को संपादित करने का उत्साह है। उत्साह की बात के ऊपर मैं बाद में वापस से आऊंगा, क्योंकि ये मुझे लगा कि इस पूरे जो बातचीत के अंदर जो एक महत्वपूर्ण तत्व जैसे आत्मा की तरह वो उत्साह है, तो उत्साह की तरह हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। पर क्या है कि जो इच्छा शक्ति की बात आती है, जो एक विशेष दिशा में हम अपने मन को प्रवाहित होते हुए देखते हों, यहाँ से हम दृढ़ इच्छा शक्ति कह दो, संकल्प कह दो, कहते हैं भाई कुछ संकल्प से सिद्ध कर लेते हैं। उनकी तो इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है, ऐसा हमने कई लोगों के बारे में सुना पड़ा होगा। तो इच्छा शक्ति को क्या हम और अधिक दृढ़ कर सकते हैं? क्या वो जन्म जाती है? तो इसके कुछ अभ्यास भी हैं, और भगवान ने क्या किया है कि सबको सब प्राप्त हो जाए ऐसी संभावना रखी, लेकिन वो जन्मजात तो कुछ है ही है। और जो जन्मजात प्राप्त हुआ है उसका हम कर क्या रहे हैं, उसको स्पष्ट करती हुई एक कहानी जो है, वो खरगोश वाली आपने सुनी। वो खरगोश में, और वो कौन थे, कछुए साहब। तो कछुए साहब में और खरगोश जी में ऐसे हो गया कि भाई वहां तक जाना है, समझिए वैष्णव मंदिर तक जाना है, हिल साइड एवेन्यू के पटेल ब्रदर्स से। तो उन्होंने कहा, खरगोश ने कहा मैं तो आराम से पहुंच जाऊंगा। तो रास्ते में और कोई दुकानें आ गई, वहां पे वो थोड़ा गप्पे मारने लग गए वगैरह, और कछुए अपने चलते चलते पहुंच गए श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो बात यह है कि एक निरंतरता रहे, लक्ष्य की तरफ ध्यान रहे, तो हम चाहे अपेक्षाकृत कम शक्ति लेकर मन की आए होंगे, तो भी उसका दोहन हम अच्छे से करेंगे, तो हमारे जीवन की सफलता का निर्धारण उससे होगा। अब क्या है कि जब एक व्यवस्थित बात कहने के लिए आपको एक संरचना मिल जाती है, तो उसका एक अलग मजा आता है। मैं फिर से राजेंद्र बिहारी लाल जी का धन्यवाद करते हुए, देखिए मन की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हैं, ये हमको मानना पड़ता ही है, क्योंकि आप बच्चों में भी देखेंगे भाई भाई हैं तो अलग अलग हैं वृत्तियों वाले। तो इसमें मैं वो क्या अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं, लेकिन ऐसे ताकि आप जुड़ें कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए एक समय ऐसा था, मैं जयपुर में था, मेरी माता जी मेरे परिवार में, तो ऐसा वातावरण था कि आपको ग्रंथों के अंदर अगर रस आएगा तो वो उसकी सराहना करते थे, या वो आपको उस तरह का संरचना उपलब्ध करा देते थे कि आप, जैसे मैंने भागवत पाठ किया था छोटा, अच्छा अब के हिसाब से देखा है तो मैं मेरी अर्ली 20s में था, या मे भी 20 का भी नहीं था। अब मैं ऐसे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो उन्होंने क्या बाकायदा वो, जैसे अभी आप देखते हैं कि वो बड़े पंडित जी लोग आते हैं, उनके लिए वो पट्टा वट्टा बिछाया, सजावट कराई, मेरी बुआएं मेरी दादी सब लोग, तो उन्होंने सुना, प्रेम से सुना। अच्छा, मैं और मेरे पिताजी, वो उनको धर्म में रुचि नहीं थी, लेकिन वो भी आके बैठ जाते थे कि यार ये कर रहा है तो थोड़ी देर सुन लेते हैं। तो बात मैंने ये इसलिए छेड़ी कि
मैंने अपनी तारीफ करने के लिए नहीं की, लेकिन मेरे दूसरे भाइयों ने नहीं किया ऐसा, मैंने देखा है, मैं उनको कुछ कह नहीं रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं किया, उसमें कोई उनको पूछता भी नहीं था। एक सहज भाव से जिसके मन में जैसी वृत्ति है उस तरह से उसको करने का अवसर मिलना चाहिए, और दूसरे पर प्रश्न चिन्ह नहीं कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया या तूने वैसा क्यों किया। उन्होंने और बहुत सारे अच्छे काम किए, लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैंने तो अपना बता दिया। पर बात मैंने मन के संदर्भ से बताई। तो एक तरफ उन्होंने मेरे इस भाव की सराहना की कि मेरे मन में ऐसा पाठ करने का इच्छा हुई। मैंने इस बात की सराहना कृतज्ञता के साथ की कि इन्होंने मुझे इसका अवसर उपलब्ध कराया। अगर समझिए कि मेरा मन नहीं होता, वो मुझे मार मार के कहते कि पढ़ तू ये, तो मैं पढ़ता नहीं वो। और पढ़ता तो मैं हमेशा उनको मैं ऐसे याद करता, यार मुझे वहां पे ऐसे कर दिया था, और मैं 25 साल बाद में भी ये कह रहा होता कि वो मेरे पिताजी बहुत खतरनाक आदमी है, मुझे ऐसे करके जबरदस्ती पढ़ा दिया। तो अच्छा, वो खुद भी नहीं बैठते थे वैसे। लेकिन बात अभी मन की है, ये मैंने उदाहरण अपना व्यक्तिगत इसलिए लिया क्योंकि आपके अपने अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ऐसी स्थितियां आई होंगी कि जिसमें एक भाई ने एक विशेष रूप में बड़ी दक्षता प्राप्त की, दूसरे को उसमें रुचि नहीं है। ऐसा होता ही है। कोई बहुत अच्छे एथलीट बनने चाहेंगे तो वो एथलीट बनेंगे, कोई सिंगर बनना चाहेगा तो सिंगर बनेंगे। तो इस बात को हम ऐसे समाजवाद की तरह, अगर वैसे रहेंगे भाई सबको एक ही तरह का मन है, तो भगवान जो है वो समाजवाद में विश्वास नहीं करते, मैं ऐसे कह दूंगा। वो तो विविधता में विश्वास करते हैं। वो अनंत है जो क्रिएटर है, और हम सबको अलग अलग बनाए। एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में जब मैं स्केच बनाने में और बल्कि वो जो पोर्ट्रेट बनाने में मुझे बहुत रस आने लग गया था। तो मैं रेलवे स्टेशन में बैठा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो गांव की महिला है, इसका नाक कैसा है, मैंने बनाया। कोई अच्छे नहीं बनाए, लेकिन उन दिनों में मैंने ये देखा कि हमको लगता है कि हम सबका रंग भूरा है हमारी त्वचा का, लेकिन है नहीं। आप दोनों मुकुंद जी, आप आपस में देखेंगे तो आपकी त्वचा के रंग अलग अलग है। और तो कैसे वो उन्होंने इतना वेरिएशन सिमिलर कलर में कर दिया है, तो वो उनकी जो अनंत है, उसकी जो रचनात्मकता है वो अनंत है। अब इस बात को लेके हम जो मन की 5 मुख्य बातें हैं उसकी तरफ ध्यान देते हैं। एक क्या है कि जो हमारी समझने की शक्ति है, जैसे अभी मैंने सुबह मैं टाइप करके मुकुंद जी को पूछा कि मैं अपने फ्रेंड को अगर इसमें बुला लूं तो ठीक है क्या बातचीत हमारी करने के लिए। तो वो क्या, वो टाइप में वो FRI गायब हो गया, एंड हो गया। तो वाक्य क्या बन गया कि मैं इनवाइट माय एंड्स। तो अब कोई दूसरा बंदा होगा वो क्विकली समझेगा नहीं कि ये एंड कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है। तो इन्होंने अपनी तरफ से उसकी इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग कर दी, वो पकड़ लिया कि हाँ ये फ्रेंड्स के लिए लिख रहा है। मैंने मुकुंद जी का मस्का लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ बात के लिए कह रहा हूँ। कई बार होता है कि कोई लोग हमारी बात को जल्दी समझ जाते हैं, कोई लोग नहीं समझते हैं। तो ये अलग अलग है ना मानसिक शक्ति। कुछ लोग हमारे कहे बिना समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए, और कई लोग आपने कहा है तब भी नहीं समझेंगे वो। अच्छा, दूसरी हमारी जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग है। ये तो आपको पता ही लग जाता है कि ये बंदा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट है कि नहीं है, इसका जो हम मूल्यांकन करते हैं वो 100% सही नहीं भी हो, तो भी हमको लग रहा होता है कि ये इस अवसर विशेष में अगर हम ऐसे स्थान पर गए हैं जहां परिवार में कोई सदस्य चला गया है, तो वो उस तरह की संवेदनात्मकता उसके व्यवहार में परिलक्षित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वो कोई ऐसे अवसर पर है जहां विवाह का उत्सव है, वहां पे अगर वो अपने चेहरे पर मातम लेकर बैठा, तो ये एकदम व्यावहारिक ढंग से भी हम ऐसा देखते हैं कि ये, और हमने उनको प्रश्न पूछा, उन्होंने वही बात को समझकर उत्तर दिया जो हमें चाहिए थी, तो हमें पता लगता है कि ये इंटेलिजेंट है। और भी काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं। आजकल तो लोग वो क्वेश्चन पूछकर आपसे वो उसका एक मूल्यांकन कर देते हैं कि ये कितना, इसका IQ लेवल कैसा है। IQ लेवल के साथ में फिर एक इमोशनल क्वेश्चन कैसा, वो भी बातें आने लगी। उसके बाद में नलिनी जी ज्यादा बता सकते हैं। पर ये अंडरस्टैंडिंग के इंटेलिजेंस के साथ में ये कहता है, मन की बात है कि हमारी किसी बात को याद करने की जो शक्ति है वो कैसी है। इसमें याद को लेकर मैं थोड़ा सा 2 तरह से याद के बारे में बात करूंगा। एक तो ये स्मरण शक्ति की बात हो गई, जैसे
कोई है उनको रामचरितमानस पूरी की पूरी याद है, या श्रीमद् भगवद गीता का कौन से अध्याय का श्लोक कौन सा है वो पूरा याद है, या उनको पता है कि ये टैक्स का जो अभी नया लॉ आया है या इमिग्रेशन लॉ क्या है, या कई फॉर्मूलेज याद हैं। यानी वो एक मानसिक शक्ति मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों की बहुत फर्स्ट क्लास होती है। तो कुछ पूछना होता है तो हम सोचते हैं इसको पूछ लो, एनसाइक्लोपीडिया। और पहले आपने सुना होगा एक वो कहानी आती थी, बूझ बुझक्कर जी महाराज, तो जहां जाते थे वो गांव वाले कुछ पूछते, उसके बाद सब चीजों के उत्तर होते थे। तो उसकी मेमोरी का भी उसमें थोड़ा योगदान रहता ही होगा। अब मेमोरी के साथ में मैं थोड़ा सा एक और रास्ता पकड़ रहा हूं। आप जिस अवस्था में हैं अपने जीवन की अवस्था में, मतलब हम सब ज्यादातर बुजुर्ग लोग हैं हंसने में तो कोई बुराई नहीं है। बुजुर्ग होकर हमारा ये सामान्य ऑब्जर्वेशन रहता है कि हम पीछे की तरफ अधिक देखना लग जाते हैं कि वहां पे था तो ऐसा था वहां गए थे तो ऐसा हुआ था, अमुक मनुष्य ने मुझे ऐसा कह दिया था, वो मुझे अवार्ड मिला था तो कितना अच्छा था। ये सब मेमोरीज क्या। अब इसमें क्या है कि कई बार मेमोरीज जो है वो एसोसिएशन से होके आ जाती है। जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि कब कौन सी बात याद आ जाए हमको पता ही नहीं है। अब मैं अपना ही बता देता हूँ, आजकल मैं बहुत ज्यादा पारदर्शी होने लग गया हूँ। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और चलाते चलाते मुझे समझ में भी नहीं आता क्यों मुझे कोई ऐसे मेरे समझिए मेरे चाचा जी याद आ गए जिनसे कि मैं बहुत स्नेह करता था, और वो नहीं है अब, और उनके साथ जुड़ी हुई कोई बात याद आ गई। तो भाई साहब वो क्या है, जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज से गुजर रहे हैं, लेकिन याद उनकी आके पहले तो खुशी हुई कहीं कि यार उन्होंने कितना प्रेम दिया, फिर ये आया कि यार वो है ही नहीं। ये आकर आप ऐसे हो गए जैसे अश्रुपात होने की स्थिति तक पहुंच गए। अब ये बात मैंने आपसे बहुत व्यक्तिगत ऐसे कही कि याद का आना जो है उसको क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने देख लिया कि ये मुझे इस बात की याद आ रही है और इस बात की याद आना मेरे लिए इस रूप में इसको व्यवस्थित करूंगा तो श्रेयस्कर होगा, तो वो मतलब हुआ कि अपने मन को मित्र बनाने की दिशा में हमने एक सजग कदम उठा लिया। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और एक दो बातों के साथ यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा। याद जो है ना वो नियंत्रित रूप से ऐसा आप जैसे कि आपने ये स्विच दबाया लाइट हो गई ऐसे करके आप कर सकते हैं कि अब मैंने स्विच दबाया तो अब मुझे वो समय याद आया जब मैं गंगा के तट पर था, या जो भी मेरे लिए पवित्र और मुझे कल्याणकारी एक अनुभव रहा है वहां पर था। ये दरअसल याद जो है इसका और मन के साथ में हमारी मित्रता का मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि बड़ा घनिष्ठ संबंध है। तो एक आप में से कुछ लोगों ने शायद उपन्यास पढ़ा होगा, पैपियों करके एक उपन्यास था, उसमें वो किसी टापू के अंदर कोई जेल में होता है और उसको किसी को देखने का मौका नहीं है वगैरह। तो वो कुछ कुछ जो पहाड़े याद करता रहेगा, या तो अपने मन को किसी ऐसी जगह लगाना है जहां पे कि वो टूट फूट में नहीं चला जाए। तो याद एक बड़ी औषधि की तरह काम करती भी है। जो भी हमारे कहते हुए नाम की महिमा अपार है, तो शब्द ब्रह्म है, तो क्या है मन को लेकर आपने उसको याद किया जो कि सर्वश्रेष्ठ है। आप चाहे जिस रूप में ईश्वर तक पहुंचने के लिए या अनंत तक पहुंचने के लिए या अपने आत्मोत्थान के लिए अपने कल्याण के लिए जो पथ आपको अधिक रुचिकर होता है, उन सब में याद का बड़ा महत्व है। ऐसा कह के मैं एक और जो बात हमने अभी क्या मन के बारे में बात करते हुए मानसिक शक्तियों के अलग अलग जो हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग की बात की, इंटेलिजेंस की बात की, मेमोरी की बात के बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि आजकल बहुत हम सुनते हैं, इनोवेटिव थिंकिंग। या यूं कहिए कि एक स्थिति है, उस स्थिति में आपको बाहर आने के लिए समाधान ढूंढना है, और अगर आपने जिस तरह से समाधान पहले ढूंढा था उसी तरह से ढूंढते रहेंगे तो कहते हैं कि आपने वही तरह की विधि अपनाई है तो वही तरह का परिणाम आएगा। तो आपको लगता नहीं थोड़ा अलग तरह से देखना चाहिए कि ये इस तरह से काम नहीं कर रहा है तो दूसरी तरह से कैसे काम करेगा। इसको आप कह देंगे नूतन विचार सृजन करना, या इनोवेटिव थिंकिंग कह दीजिए, क्रिएटिव थिंकिंग कह दीजिए। ये बड़ी बड़ी रोचक बात है। इसको भी मैं ऐसे कहूंगा कि
मेरा एक शेर आप तक पहुंचा दूं, मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे कह के अपने मुंह मियां मिट्टू बन नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बात है, बन भी गया तो कोई बात नहीं, आप तो बड़े हैं सब। कहता है कि वही जगह है वैसी ही है हंसना रोना हाथ तुम्हारे, वही जगह है वैसी ही है हंसना रोना हाथ तुम्हारे, और अपने साथ जरा चल देखो सारी दुनिया साथ तुम्हारे। तो बात क्या है कि एक ही तरह की स्थिति में आप प्रसन्न भी हो सकते हैं, अप्रसन्न भी हो सकते हैं, उत्साह से भी अपने को भर सकते हैं, खिन्न भी हो सकते हैं, कुंठित भी हो सकते हैं। तो ये जो अंतिम निर्णय लेने की आपकी ताकत है, उसकी चाबी मन में है। तो मन मित्र होगा तो आप उसके साथ में इस तरह की व्यवस्था स्थिति से संबंध की बनाने की दिशा में काम करेंगे कि जो है वो अच्छा लगेगा। अच्छा, ये जो है कई लोग कहते नहीं, ये तो झूठा मूठा करा दिया। झूठ की बात नहीं है भाई, आप स्वयं उसको व्यावहारिक ढंग से देखिए कि सत्य और झूठ जो आप मान रहे हैं उसका निर्णय भी आपका मन कर रहा है। कोई दूसरा किसी बात को सत्य मानेगा, आप कहोगे कि नहीं ये झूठ है। तो एक तो सार्वजनिक रूप से यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो तो अपना है कि भाई सूरज पूर्व दिशा में उगता है, या अभी समझ लीजिए कोई ऐसा है जिसको लगता है कि अमुक मनुष्य बहुत बुरा है, दूसरे को लगता है ये बहुत अच्छा है, दोनों का सत्य अलग अलग है, पर वो सत्य बनाने का जो उनका ढंग रहा है उसके बारे में सजग होने की बात हम अपने कल्याण की दृष्टि से करें तो इसका मतलब हुआ कि हमने मन को मित्र बनाया है। इसमें क्या होता है, हमारी जो इमेजिनेशन है, ये मैंने ये बातें दोहरा देता हूँ, मतलब बिंदु जो मुझे वहां से प्राप्त हुए जो मन की शक्तियों के संबंध से जुड़े हुए हैं। तो एक तो अंडरस्टैंडिंग हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, और क्रिएटिव इनोवेटिव थिंकिंग हो गई तीसरा, और चौथा हो गया इमेजिनेशन। और जो नहीं, चौथा इमेजिनेशन कैसे हुआ, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, क्रिएटिव थिंकिंग, उसके बाद पांचवा है जो इमेजिनेशन जिसकी बात मैं अब कर रहा हूं। तो इमेजिनेशन का और मेमोरी का ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन इमेजिनेशन में क्या है कि जो नहीं घटित हुआ है उसके बारे में भी आप कल्पना कर सकते हैं। यानी कि जो हम हवाई जहाज में उड़ के भारत से यहाँ आ गए या जाते आते हैं, तो एक समय था किसी ने पक्षियों को देख के ये कल्पना की कि ये हम भी ऐसे उड़ सकते हैं। फिर उन्होंने अध्ययन किया कि क्या हवा के साथ उसके क्या नियम है, इत्यादि इत्यादि। और जो कल्पनाशीलता है वो हमारे लिए कई फिल्में लेकर आती है जिससे कई बातें हम तक पहुंचती हैं। या आप अपने घर में कैसा डिजाइन चाहते हैं उसके लिए या तो इंटीरियर डेकोरेटर की हेल्प ले लेते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि हमको ऐसे करना है। तो ये जो कल्पनाशीलता है वो हमारी मन की शक्ति के साथ में जुड़ी हुई है। अब ये जो सारी बातें हैं जो अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी इत्यादि है, इनको हम इनकी बड़ी रेंज है। एक तो जन्मजात है वो तो है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी रेंज है। अच्छा, जो बात मुझे इस संबंध में चिंतन करते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता से भरने वाली रही, जिसको लेके मैंने अपने कुछ मित्रों को भी कह दिया कि भाई आना हो तो आ जाना। ये बात है कि एक सत्संग है, उसमें प्रसाद नहीं होगा, लेकिन मन की बात कर रहे होंगे। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, इसका प्रयोग करके आप जिस आउटपुट तक जा रहे हैं, अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रकृति के लिए जो कुछ कर रहे हैं, वो सारा जो है एक एक केंद्र जिसमें वो जुड़ जाता है, उसको उत्साह कहते हैं। अब ये उत्साह कहाँ से आता है? तो देखिए, आप इसके बारे में चिंतन करते हुए पहले इसको मैं दोहराऊं आपके साथ में कि आपके पास में खाना तो बना हुआ है बहुत बढ़िया, या समझिए आपने वो ऑर्डर करके मंगा लिया, अब वो सब चीजें सामने हैं आपकी टेबल पे जो कि आपको बहुत पसंद है, लेकिन खाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो पड़ी है तो वो पड़ी है। अच्छा, कोई आएगा भूखा होगा, उसका मन होगा वो खा जाएगा। उसने कहा कि यार मैं खा लूंगा, आपने कहा यार जो चले पिज्जा आपको पसंद है, पिज्जा ही पड़ा है, आपने कहा यार तू खा ले यार। जो उसको बड़ी भूख लगी थी और उसके मन में उत्साह था, पिज्जा खा गया पूरा वो। अब उसके बाद में आपके मन का उत्साह जाग रहेगा तो पिज्जा चला गया तब तक। तो ये तो पिज्जा तो बाहर की वस्तु हो गई। अब ये जो अंदर का है वो भी समय के साथ साथ जा रहा है, वो हमको पता नहीं लगता है।
आप जितना काम पहले कर सकते थे, अब उस तरह से शारीरिक रूप से श्रम करने की अवस्था रही नहीं है, तो वो समय चला गया। उस वक्त कर लेते तो कर लेते। अब इससे मैं कल ही याद कर रहा था, एक स्वामी जी ने रावण के संदर्भ को याद करते हुए बताया कि जब वो अपने अंतिम समय में थे, वो बाकी सब घटित हो चुका है, वो शैया पर हैं, तो राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि आप उनके पास जाके, वो बड़े विद्वान हैं, वहां जाकर आप पूछो कि उनके जीवन का उपदेश सार क्या है। तो लक्ष्मण जी राम जी की बात टालते नहीं थे। आजकल के भाइयों में ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पर लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा, अच्छा वो वैसे लक्ष्मण जी गुस्से वाले थे, आपको पता होगा, वो मतलब राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में जो वाल्मीकि जी से या तुलसीदास जी सुना, उसके बेस पे कह रहा हूँ, मैं तो मिला नहीं उनसे कभी। पर लक्ष्मण जी इस बारे में राम जी की बात मान के रावण के पास पहुंच गए। फिर उन्होंने वो निवेदन किया कि आप अपना उपदेश करें। तो रावण ने, जो मैंने स्वामी जी से सुना, रावण ने 2 बातें बताई उनको, जो मन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तो क्या कहा उन्होंने कि लक्ष्मण, मुझे 2 विशेष बातें लगी जीवन में। एक तो कोई अच्छा काम करने की बात मन में आए तो कर दो कर दो कर दो। दूसरा कि कुछ बुरा काम करने की बात मन में आए तो उसे टाल दो टाल दो टाल दो। अब रावण मनीषी थे वैसे, लेकिन अब यहाँ देखिए तो वो पहले ये बात उनको पता थी, और उनको ये पता शायद नहीं रहा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो मन के साथ साथ जब हम उसको प्रशिक्षित करते हैं, तो विवेक का जो एक संकेत आता है, तो हमें पता हो कि हमारे लिए श्रेयस्कर क्या है। अब इसमें रावण की बात तो उन्होंने जैसे क्वालिफाई स्वयं ने किया, जो भी मैंने सुना वो ऐसा था। उन्होंने कहा एक समय, रावण कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि मेरे पास इतनी शक्ति थी, इतना बल था कि अगर मैं चाहता तो धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बना देता, पर मैंने सोचा कल बना देंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन शब्द है, तो वो कल आया ही नहीं कभी। और कहते हैं कि जब मेरे मन में सीता मैया को अपहरण करने का भाव आया, तो अगर मैं उसको टाल देता तो अच्छा क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, एक अच्छा काम करने की बात एक क्षण आती है, जैसे इसको सीरियसली मत लेना, मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि यार अशोक भाई इतना अच्छा है यार, इसको कुछ इसके लिए साथ बैठ के कुछ करना, अशोक भाई को छोड़ दे। समझिए आपके मन में आया कि कोई गायों का एक सेवा करने का जो प्रकल्प चला रहे हैं, उनको मैंने अपनी ओर से $10,000 देने, तो दे दिए तो दे दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। उस वक्त जो थॉट आया, ये मैंने जो उदाहरण लिए, इससे अलग अलग आपके जीवन में उदाहरण हो सकते हैं। आपको पता है कि क्या है जो करना अच्छा है, लेकिन आपने पीछे मुड़ के देखेंगे तो अगर हमने उस बात को उस वक्त नहीं किया तो फिर वो समय निकल जाता है। इसी प्रकार से किसी को थप्पड़ मारने की मन में आ गई, आपने कहा लपड़ मार दी इसको क्योंकि इसने ऐसा कह दिया था, ये अमुक जगह पे हंस दिया था। ये हंसने वाला जो मामला है, ये भी बहुत जोरदार है। अभी तो आपने ये देखिए, आपने ये देखा ना, वो उनकी धर्म पत्नी पर हंस दी है। कौन, क्या नाम है सब उसका, अब वो पता है, क्रिस रॉक। तो क्रिस रॉक जो थे, उनके पास में ग्रैमी, आप में से कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा हो तो वो क्लिप बहुत जगह आ गए, जो विल स्मिथ है क्या नाम उनका, जो एक्टर है बहुत बड़े, और ये ग्रैमी कह गया मैं, ऑस्कर था वो, ऑस्कर अवार्ड चल रहे थे, और ये सबसे आगे की सीट पे बैठे थे। उन्होंने इनकी पत्नी के बारे में कुछ बात कही जो इनको लगा कि उसने मजाक उड़ा दिया उसका, तो वो स्टेज पे गए और जाके और उनको टड़क लपड़ रसीद कर दिया। तो वो जो लपड़ मार दिया गया, उसके बाद में भी उनके मन का आवेश खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कुछ अपशब्द भी बोले जो कि पूरी दुनिया तक पहुंच गए कि ये आदमी ने ऐसे बोला। अब उसका परिणाम, ये तो एक प्रसंग विशेष है जी, हम तो मन की बात करें, उसका वे को 10 साल के लिए उनको एकेडमी ने बैन कर दिया, और कई लोगों ने कहा ये भला बुरा भला। अच्छा, अब इसमें मन की बात को लेकर क्रिस रॉक का जो उस समय जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, तो वो भी उनको मार देते लपड़ तो नीचे उतर के, तो क्या दृश्य बनता आप सोचो। तो एक मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा ही आदमी है, या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इतना अच्छा एक्टर है, उसने बहुत अच्छे काम किया, आगे भी कर सकेगा, ऐसा मेरी प्रार्थना भी है और विश्वास भी है। लेकिन वो क्षण विशेष में जो उसने कर दिया, उसका जो लांछन, उसकी जो कालिक है, वो तो उसके ऊपर हमेशा के लिए लग गई। अब ये देखिए, हंसने की बात को लेकर मैं
एकदम हमारे तात्कालिक से लेके हम महाभारत के प्रसंग में चले जाते हैं, वापस आ जाएंगे, हम बात मन की कर रहे हैं। तो जो महाभारत के पीछे हम ऐसा बोलचाल में सुनते हैं, भाई द्रौपदी जो थी वो दुर्योधन के ऊपर हंस गई क्योंकि उसने वो ऐसा समझा कि यहाँ पे पानी है जो कि था नहीं तो ये हंस गई, तो उसको गुस्सा आ गया, ऐसा कहते हैं। इसलिए फिर बाद में वो जो महाभारत का युद्ध हुआ उसके मूल में कहीं ना कहीं द्रौपदी द्वारा उसका जो उपहास हुआ, तो उसने कहा भाई मैं बदला लूंगा। जब फिर मन जो है वो तय कर रहा होता है कि मैं क्या करूंगा या क्या नहीं करूंगा, उस समय भी अगर हम सोचें कि नहीं यार ये करना ठीक है, वो करना ठीक है। अब इसमें मैं उससे कितना सहमत हूँ कितना इस पे मैं नहीं कहूंगा अभी, लेकिन गांधी जी क्या कह रहे हैं, कह गए, मतलब जो हम बहुत बार सुनते हैं, उन्होंने क्रिश्चियनिटी से उसका संकेत लिया शायद कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी सामने कर दो। तो अब इसको लेकर हम उनकी जिस भावना के पवित्रता से देखें तो इसका मतलब है कि आपका अपने ऊपर इतना नियंत्रण है कि आपको ये पता है कि इसने मेरी देह के ऊपर जिस तरह से आघात किया है उससे मैं अंदर से अविचलित हूं। इसको वहां से देखने की आवश्यकता है, इसको किसी भय से ग्रस्त होकर, क्योंकि मैं तो इसका कुछ कर नहीं सकता हूं तो एक लपड़ मार दी दूसरे गाल पे मार दी, उस तरह से नहीं देखेंगे तो हम गांधी जी की उस भावना के साथ यहाँ पे न्याय कर पाएंगे। और वो जो उन्होंने भूख हड़ताल वाली बात, और वो कहा कि भाई वो नमक क्या बनाने के लिए गए और वो लाठी मार रहे हैं तो भी हम उसको चुपचाप सहन करेंगे। तो वो जो आत्मबल की बात आई है उसको लेके ना मैंने समय देखा 11:24, 5-10 मिनट में मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। आप अगर कोई कुछ जोड़ना चाहे कुछ पूछना चाहे तो वहां पे, लेकिन बात ये थी गांधी जी के प्रेरणा से आत्मबल का आधार लेके ऐसे लोग जिनकी 1.5 पसली की देह थी लेकिन उन्होंने लाठियां खाने के लिए अपने आप को साहस से भर लिया, वो क्या शक्ति है। मैं उसको आत्मा के साथ तो है बात, लेकिन मैं उसको मन की शक्ति के साथ जोड़कर आप तक उसको याद कर रहा हूं। तो हम अगर अपने आप में स्पष्ट हैं कि मैंने कष्ट क्यों सहन करना है तो कष्ट सहन करने की ताकत आ जाएगी। जैसे आपने उदाहरण देखे होंगे, कभी कभी ऐसा हुआ कि एक गाड़ी का कोई एक्सीडेंट के कारण वो पहिया ऐसे अचानक हो गया तो बच्चा नीचे आ रहा है, तो माँ को है कि अगर ये जल्दी से हटाया नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा, तो माँ के अंदर इतनी शक्ति आ गई उसने गाड़ी को उठा दिया। ऐसे आपने कुछ प्रसंग सुने होंगे। तो कहाँ से वो इतनी शक्ति आ जाती है, क्योंकि करना है ये भावना से वो जो पूरा व्यक्तित्व है वो भर जाता है। तो जो शक्ति हमारे पास नहीं उसका भी हम आह्वान कर लेते हैं। ऐसा जो है आपने तब भी ऐसे संदर्भ देखे होंगे कि अगर कोई शिकारी कुत्ते आ गए तो जो हिरण है वो कुलाचे मार के ऐसे भागे, क्योंकि उसके प्राणों पर बनाई है। अगर इस शिकारी कुत्ते ने उसको पकड़ लिया तो ये चला जाएगा, और उसको जीवन से प्रेम है, वो भगवान ने हमारे अंदर डाला है, ऐसे हरिण के अंदर भी डाला है। तो वो उसकी टांगे इतनी तेज गति से उसको वहां असुरक्षित स्थान से दूर ले जाती हैं कि वो बच जाता है। अब ऐसा है कि क्रोध वैसे तो नकारात्मक होता है, पर उसका कहाँ पर प्रयोग किया। अब मैं अपने सारांश की तरफ जाते हुए ना मैं उत्साह की बात के साथ इनको थोड़ा जोड़कर आपके साथ देख रहा हूँ। उत्साह कभी तो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में अपने आप आ जाता है, जैसे फूट गया हो, जैसे जैसे कि बादल फट के आ गए, उस तरह के उदाहरण मैंने अभी लिए। पर हम उसको अगर अपने मन को मित्र बनाते हैं तो हमें पता हो जाएगा कि ये मेरा उत्साह बना रहेगा, तो मैंने ये जो किताब लिखने का सोचा है ये मैं पूरा लिख पाऊंगी। ये मैंने अमुक नाटक के मंचन के बारे में जो परिकल्पना की थी वो मैं कर पाऊंगा। तो उत्साह को जागृत रखा तो मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे जो कुछ सेविंग करनी है या उनको जिस तरह से सिखाना है वो मैं एक सतत रूप से कंटिन्यूअसली मेरा उस पर ध्यान रहेगा तो मैं कर पाऊंगा। या मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे सफल होना है, या उन सब में ये जो उत्साह है उसके बिना बाकी के सारे जो तत्व हमारे पास होंगे, मेमोरी अच्छी है, इंटेलिजेंट है, समझ लेते हैं, लेकिन उत्साह ही नहीं रहा तो फिर सब फुस हो जाता है। तो इसलिए बात जो हमारे अंदर जो कुछ भी एक गुण है वो दैवी प्रदत्त है, ऐसा मैं यूं कहूं। तो क्रोध के अंदर भी
कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन उसको किस तरह से हमने अलाइन किया है उसके साथ में ये बात निकल कर आएगी कि वो क्रोध हमारा हमें लाभ पहुंचा रहा है या हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो किसी पर आक्रमण करना है, वो क्रोध उसका उस तरह से चैनलाइज करके आक्रमण किया है तो होगा। ऐसे कहते हैं जो भावों की बात है उसमें हमको धीरे धीरे पता लग जाता है ऑब्जर्व करते हो खुद को और प्रकृति को। तो एक तो क्या है, क्योंकि हमारा प्रकृति के साथ संबंध है, तो यदि आधुनिक जीवन में भी हम देख रहे हैं, जब हम सिर्फ स्क्रीन के सामने रहेंगे तो ऐसा लगता है धीरे धीरे हमारे अंदर का कुछ जो है वो टूट फूट सी होने लग गई है, या हमें अपने साथ एक निरंतर जुड़ाव का रस आनंद का मिल नहीं रहा है। तो हम नदी के किनारे जाके बैठे हैं, पेड़ों की तरफ देख रहे हो, उड़ते पंछियों को देख रहे हो, उनकी आवाज सुन रहे हो, तो हमारे मन के शांत अवस्था तक पहुंचने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, आप मन की शांति के लिए प्रयत्न करते हैं जाने में अनजाने में? क्योंकि मन अशांत है तो वो किसी स्थान पर अब आपको बैठने नहीं देगा वो मतलब क्या, वहां चल लेके चला जाएगा। तो आप खाना भी खाएंगे तो स्वाद ठीक से आएगा नहीं अगर आपका मन अशांत है। तो इतना अच्छा इन्होंने बनाया था, दूसरे लोग तारीफ करे, अच्छा आपको कुछ पता भी नहीं लगा, लेकिन जो तारीफ करे आपने, हाँ हाँ बहुत अच्छा बना था। अच्छा भाई, टेस्ट करते हो तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं प्रेजेंट ही नहीं था वहां पे, मैं कुछ और सोच रहा था। तो ये जो उपस्थित होना हमारा है किसी एक क्षण विशेष में, वो हमारे मन के साथ विकसित की हुई मित्रता पर निर्भर करता है। और ये मित्रता का बहुत सारा अंश तो हमने जन्मजात प्राप्त किया है, लेकिन उसको और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। और मित्र के परिभाषा में आप ये देखेंगे कि मित्र हमारे वो होते हैं ज्यादातर जिनके साथ हम ऐसी बातचीत करते हैं कि हमको इंटरेस्टिंग लगती हो। यानी बोरिंग अगर तो होते होंगे, मगर हमको लगता है यार यहाँ से भागो यार। तो एक एनर्जी जैसी बनती है। उसी तरह से अगर हमारा मन हमारा मित्र है तो हमें अपने साथ आनंद आ रहा होगा। अगर हमारा मन हमारा मित्र नहीं है तो हम अपने आप में एक इस तरह की अव्यवस्थित भावना महसूस कर रहे होंगे कि बेचैनी रहेगी, कहीं ना कहीं जाने की एक लालसा रहेगी। तो मन को मित्र बनाना कई तरह से किया जा सकता है, जो कि हम अपने अपने तौर पर उसको पहचान सकते हैं कि मैं अपने मन को मित्र बनाने के लिए क्या करूं। पर मोटा मोटी जो बात है जिसको लेकर हम समापन की तरफ करते करते मैं खींच लूंगा थोड़ा। तो क्या होता है कि आप प्राणायाम करेंगे ना, तो आपका मन आपका मित्र क्यों बन जाएगा। उसके पीछे जो बात कही गई कि वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठित, ऐसा कहा कि जो हमारी वाणी है वो माता है हमारी, और जो मन है वो हमारा पिता है। अब मन को पिता का है और वाणी को माता का है। उसके साथ साथ ये है कि हमारी वाणी में और हमारे मन में अगर एक दूसरे के साथ में अच्छा संबंध होगा तो हम अगर अपने आप को बालक के रूप में देख रहे हैं तो हमारी परवरिश अच्छी होगी। और जो हमारा मन का आरोह अवरोह हो रहा होता है, किस बात के साथ जुड़कर कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से हमारे प्राणों पर भी असर पड़ेगा। आप देखेंगे कि आप कोई गुस्से में होगा तो नहीं, ऐसा नहीं, तो जैसे भी मतलब उसका जो सांस लेने का ढंग होगा वो अलग तरह का हो जाएगा। और जो शांत भाव में होगा उसकी जो प्राणों की गति होगी, उसकी जो लय होगी वो अलग होगी। तो प्राणायाम करते करते आप उस लय को प्राप्त कर रहे होते हैं जिससे आपका मन आपका मित्र बन के आपके साथ में इस तरह का व्यवहार करने लग जाता है कि आपको जहां उसमें आनंद आ जाता है। और दूसरा यह है कि आप अपने आप को चोट पहुंचाने की जो एक आदत कई बार अनजाने में पड़ जाती है, उससे अगर आप मन को मित्र बना लेते हैं तो वो बच जाता है। देखिए कई लोगों में, हम में, मुझ में भी कहीं ना कहीं, किसी में ज्यादा किसी में कम, हमसे ये नहीं हुआ उसको लेके हम अपने आप पर कोड़े मारते रहते हैं, अरे मेरे से तो ये हुआ ही नहीं, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। जो दूसरे कहते हैं वो तब तो हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कैसे कह सकते हो मुझे, लेकिन हम खुद को कहते रहते हैं। तो उससे हमारी जो आगे कार्य करने की जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है वो बाधित हो जाती है, और हम ठीक ठीक अपने मन की शक्ति का उपयोग करने में सफल नहीं रह पाते हैं। तो एक मैं आपके साथ स्वतंत्रता लेके कुछ कबीर जी को मैंने पहले याद किया, फिर उन्होंने कहा मेरे दोहे लिखे थे भूल ही गए, तो उसमें से कुछ एक दोहे में
आप तक ऐसे पहुंचा रहा हूं। आप उसको यूं समझिए कि ये हमारी तरफ से आज का उपसंहार में उपहार है कबीर दास जी का मन पर जो चिंतन है। और कबीर दास जी तरफ जाते हुए मुझे भगवत गीता का वो वाला श्लोक का संदर्भ आप तक पहुंचाना था, जिसमें अर्जुन ने कहा कि आप ये तो कह रहे हो कि मैं मन पर नियंत्रण करूं, लेकिन वो ऐसा है, मुश्किल है जैसे कि हवा को हाथ में पकड़ लेना। तो उन्होंने कहा मुश्किल तो है, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? धीरे धीरे अभ्यास से और वैराग्य से। तो अभ्यास करने के लिए अपने साथ धैर्य रखना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे करते ही मन वो जादुई चिराग की तरह हमारा मित्र नहीं बन जाएगा, वो भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अभ्यास के साथ जो वैराग्य शब्द आया उसको मैं थोड़ा सा आपके साथ देखूं तो वैराग्य के लिए मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे कि वो विशेष रूप का राग है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि मन है और कहीं ना कहीं उसको लगना है, पर उसको विशेष रूप से लगाने वाली बात वैराग्य की दृष्टि से आती है। तो विवेकानंद की एक बात को याद करके इसको थोड़ा हम यूं समझें कि अब कोई काम करना है अच्छे से, तो उसमें एक मोमेंट के नोटिस पर अगर आप अटैच हो सकते हैं, ये पात्रता हम विकसित करने पर बहुत ध्यान देते हैं। पर विवेकानंद कहते हैं मन की ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि एक मोमेंट के नोटिस पर आप वहां से डिटैच हो सकते हैं क्या? तो मन की शक्ति संतुलित रूप से होने के लिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों का एक जो समन्वय है वो बहुत ही आवश्यक है। और मन को लेकर जो हमारे कबीर दास जी की वाणी से एक तो ये वाला दोहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि कबीर यह मन मस्खरा कहूं तो माने रोस, जा मार्ग साहिब मिले तहां न चाले कोस। तो मतलब साहिब को भगवान के संदर्भ से कहा होगा उन्होंने कि ये मस्खरा मन है कि मैं इसको कहूं कि इधर कर तो गुस्सा कर लेता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा तो मन नहीं है ऐसा। और एक और मन की स्पष्टता कबीर की वाणी से हम तक पहुंचे। कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करण को आलसी खाने को तैयार। तो खाने को जो तैयार है तो अभी 12-12 बज रहे, तो भूख लग रही होगी कहीं ना कहीं। पर ऐसा है कि मित्र मन बन जाएगा तो क्या स्थिति आ जाएगी, ये कबीर जी के इस दोहे से देखें। पहले ये मन कागा था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। तो जो एक समझ आ जाती है कि क्या कल्याणकारी है, जो समझ गया तो वो मन हंस हो गया। इसे रामकृष्ण परम हंस, जो हंस शब्द है उसका एक अलग सात्विक जो भाव है वो अपने साथ लेते हुए मैं आपका धन्यवाद करते करते ये देख रहा हूँ कि मैंने खूब सारे कागज पर बहुत सारी बातें लिखी थी, उसमें मैंने बिना देखे आपको बताई, तो इसके लिए मैं अपने आप को बधाई देता हूँ कि मैंने बिना टीपे ज्यादातर बोल दिया। लेकिन कबीर दास जी का जो दुआ मेरी दादी के संदर्भ से मैंने याद किया था वो ये था, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रतीत। तो ये दूसरी लाइन इतनी ज्यादा पकड़ती नहीं है, वो इसलिए मेरी दादी जी को याद नहीं रही होगी। पर मन हमारा नहीं हारे, मन हमारा जीते, इसके लिए हम एक दूसरे का भी सहयोग करें और दूसरों के प्रति उत्साह के वचन कहें। इसीलिए हमारे यहाँ जो परंपरा में कहा है कि बच्चे को उसके अंदर की जो क्षमता है उसकी तरफ ध्यान दिलाएं। और वो वाली कहानी भी आपने सुनी होगी जिसमें शेर जो है वो अपने आप को शेर नहीं मानता है, तो उसको पानी के पास ले जाके दिखा देते हैं कि भाई तू कौन है। तो हम अपनी सही सही पहचान ले लें। और ये अंतिम दुआ में कबीरदास जी का कह के मेरी तरफ से मैं विधिवत धन्यवाद और समापन करूंगा। ये वाला दुआ भी बहुत अच्छा है। तो मन जो है वो अलग अलग आकार ले सकता है। क्या है? मन मोटा मन पातरा मन पानी मन लाए, मन के जैसी उपजय तैसी ही वह जाए। तो मन मोटा तो मतलब मोटा भी है, वो पतला भी हो सकता है। और मन पानी के जैसा है, शीतलता वाला। मन लाए, लाए यहाँ पे लाने से नहीं, वो आग के लिए कहा है उन्होंने। और मन के जैसी उपजे वैसी ही वह जाए।
तो मन के जैसी उपजी वैसा हो गया। मैंने उस तरह से संबोधन करने का, आपके साथ जुड़ने का जो ये लाभ प्राप्त किया, उसके लिए मैं पुनः पुनः आभार के साथ बहुत सारी मंगल कामनाएं, और ये बात याद करते हुए कि जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए जो कुछ आप मिलजुल कर करते हैं वो प्रणम्य है, और उससे रस भी आता है, हम भी प्रसन्न रहते हैं, औरों तक भी प्रसन्नता का भाव पहुंचाने की जो हमारी पात्रता है वो जागृत रहती है। ऐसी ईश्वर की कृपा हो कि आपका मन आपका मित्र बने, और आपके आशीर्वाद से मेरा भी मन में मेरा और अच्छा मित्र बनने की दिशा में आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। Thank you very much, Ashok ji. What a wonderful presentation you have made. To speak on Man for almost hour and a half, it's really, really difficult. But you tried to make us understand that if you make a Man your friend, you can achieve something in the life. Other than that, I think Man is like a chanchal. It's a vacillating always. It is never at a fixed place. See, I'm sitting in New York, but I may be thinking of my college days in Bombay. So there is no boundary to that one. One can fly within a second somewhere else. To have a control is extremely difficult. And that's why I think Man is something I recall that at one of our Indo-American meeting, Dr. Balotkar had given a presentation on Man. And he said that when he was in a medical school and he tried to dissect the whole body, cadaver, but he could not find Man anywhere in the body. So it is such a thing that we can imagine something, but it never exists as a part of our body. So that was a very good thing. And also you describe about Man and Shakti. So वो है ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो मन का विश्वास कमजोर होना. It's very much related to that. Today, I think about 120, 125 Zoom entries are there. That means about 200 people were really glued to their seats and they listened to you very carefully. I think this was an excellent discussion. It was, and you cited Kabirji, Mahabharata, Ramayana, and all that. And you have presented very nicely. So we are very much thankful to you. So now, Pankaj bhai, તમે કહો, otherwise we can have a question answer. We can go for the question answer. Okay. Those who have question, please raise your hand, please. નિરંજન ભાઈ કોઈ છે કે? ના, કોઈ લાગતું નથી. હા, એક મિનિટ. હા, નવીન ભાઈ. Yes, Naveen bhai. અનમ્યુટ કરજો. Sure, yeah. Ashok Follow. bhai, it was excellent program on Man Ko Mitra Banana. I have one question. Can you explain this about हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना. अशोक भाई, आपके लिए क्वेश्चन है, उसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? बिल्कुल. एक तो मैं पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे एक नया तरीका सिखाया. प्रश्न पूछते हुए भी हम गाना कैसे गा के सुना सकते हैं, तो आपने गाने का आनंद भी प्राप्त कर लिया. धन्यवाद है आपको. पर मैं जब भी गाना गाता हूँ, मैं तो जैसा आवाज है. नहीं, आनंद तो बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो इसमें मैं जैसे चिंतन इस पे मेरा आपके साथ बैठ के हो रहा है, उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये वैसे भी प्रार्थना के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली है. तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे मन को संचालित करने के लिए, उसको प्रेरणा से भरने के लिए हम एक ऐसी शक्ति के साथ में जुड़ते हैं जो कि मन से परे है, बल्कि जो कि किसी काल से बाधित नहीं है, जो कि समय सापेक्ष नहीं है, जो समयातीत है, और जो भी स्थितियां हैं उसमें जो हम अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं, उससे परे का जो एक व्यापक स्वरूप है जिस शक्ति का, उससे प्रार्थना करें.
तो इसमें भी इन्होंने कहा नहीं हमको मन की शक्ति देना, तो शक्ति कौन देगा कौन देगा? तो इसमें उन्होंने पहले मान लिया कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम संबोधन उससे कर रहे हैं जो कि मन से परे है। वैसे देह मन इंद्रिय जो संघात है इससे ऊपर का है। मन की शक्ति देना और मन पर विजय करने का अर्थ, जैसे कि हम इतनी देर चर्चा कर रहे थे, उस प्रकार से है कि मन को मित्र बनाना भी एक्चुअली मन पर विजय प्राप्त करना है। पर अब अगर हम इस तरफ से ही जाते हैं तो मन पर विजय प्राप्त कौन कर रहा है, ये प्रश्न आ जाता है। ये क्योंकि प्रार्थना जो हमारी है वो आत्मा और परमात्मा के मिलन के साथ जुड़ी होती है। तो ये भी पहले उन्होंने बताया नहीं कि हमको मन की शक्ति देना, तो कौन शक्ति देगा नहीं कहा। और ये भी कहा कि जहाँ मन विजय करे तो कौन विजय कर रहा है, तो अमुक अमुक जो व्यक्ति है वो उसके अंदर की जो सूक्ष्म चेतना है जो कि मन से परे ऐसे है, तभी वो उससे संवाद कर सकती है या उसके साथ। देखिए हमारी जो लक्ष्य जीवन का है तो वो परमात्मा की प्राप्ति की बारे में जो बात आ जाती है वो भी इसमें कहीं ना कहीं संकेत है। पर जैसे जैसे आपके अंदर स्पष्टता होगी, जिस आपको धन्यवाद करते हुए आपने प्रार्थना को इस रूप में जब चिंतन करने के लिए मुझे अवसर दिया है, तो हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें और दूसरों पे जय से पहले खुद को जय करें। तो खुद को जय करना जो है वो बहुत गहरी बातें इसके साथ है। दूसरों की जय करने का संबंध अर्थ तो हम अभी यूं ले लें कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना। पर अगर हम स्वयं के प्रति संवेदनशील अपने मन को मित्र बनाकर नहीं हुए हैं तो उससे यह होगा कि हम आडंबर कर रहे होंगे कई जगह पर, दूसरों की तारीफ ऊपर ऊपर से करके आ जाएंगे, उनके साथ में हमारा वो तारतम्य नहीं होगा जिससे कि हम उस एकत्व के रस की अनुभूति कर लें, जिससे कि हम और वो अलग नहीं है ऐसा भाव हमारे अंदर स्थापित हो जाए। वो तभी हो सकेगा जब हम अपने दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी हमने इसको अगर दूसरी तरह से देखना है तो ये बात आई नवीन भाई की स्थिरता हो आपके मन में। आप जैसे भगवत गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, तो अगर आप व्यग्र है, निरंतर एक बेचैनी है, एक व्यग्रता है, व्याकुलता है, तो फिर शांति नहीं है, तो फिर सुख का। और आपका जो नाम है ना नवीन, तो नवीन विचारों तक जाने के लिए जो शांत होना है वो आवश्यक है। और मेरे इस जो आपके प्रश्न के साथ में मैंने जो चिंतन किया, आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे इसमें? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया। आपने इतना कुछ समझा है, मन के बारे में बहुत कुछ समझा। और साथ साथ में कबीर के ये दोहे जो आपने जो गाए ने, वो बहुत सालों के बाद हमने ये दोहे सुने हैं। ये दोहे जो फेमस दोहे वो तो सुनते रहते हैं, मगर ये जो आपने जो दोहे कबीर जी सुनाए वो बहुत बढ़िया थे। बहुत आनंद है आज। डेफिनेटली आपको 10 में से 9 तो डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो एक के लिए मैं थोड़ा सिफारिश कराऊंगा मुकुंद जी से बाद में पर एक दुआ और आपको सुना देता हूँ। अपने उर्जे उरजिया दिखे सब संसार, अपने सुरजे सुरजिया यह गुरु ज्ञान विचार। तो उर्जे का मतलब उलझे हुए, हम उलझे हुए हैं तो सभी उलझा हुआ दिखाई देगा, और हम सुलझ गए तो सारा संसार जो है। ये गुरु का कथन है जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। मयूर भाई। हाँ जी, अशोक भाई, आपने जो मन पर बोला है वो तो इट इज ए वंडरफुल लेक्चर टुडे। एंड जो आपको जो मार्क मिल रहा है ना वो 10 में से 10 मिलते हैं। I'm giving 10 out of 10 because it is a very important, मन is the main important thing। तो हमको एक सवाल है, हमारा सवाल ये है कि सब लोग आपने बोला कि प्राणायाम करो तो ये करो तो मन कंट्रोल में आता है, पर ये ऋषि मुनि देखो, विश्वामित्री देखो, ये सब ऋषि मुनि देखो, वो सब करते हैं, वो फिर भी वो इतना एंग्री हो जाता है कि दे कैन नॉट कंट्रोल देयर माइंड। तो व्हाट इज द रीजन, हाउ टू कंट्रोल? तो आपने जो सवाल पूछा है वो इतना अच्छा सवाल है कि इसका उत्तर देने की पात्रता नहीं होते हुए भी मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, ऑप्शन में छोड़ता नहीं हूँ। तो पर हम अपने जिस विषय को लेकर बात करें उस दिशा में आई थिंक मुझे लगता है जो बात आपने कही है वो भी उसको और महत्वपूर्ण बना देती है। आप जैसे कहते हैं मेरी जब शादी मतलब मेरी शादी हो चुकी है, आपको पता है। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी
और मैं, हमारे एक स्टेशन डायरेक्टर थे विजय दीक्षित जी, उनके साथ में मेरा अच्छा संबंध था। संबंध का मतलब मैं उनसे कुछ सीखूं ऐसा मेरे भाव रहता था। तो और इंटरव्यू लेने वाला आदमी क्या करता है कि जीवन की घटनाओं में भी वो प्रश्न पूछने जाता है। तो मैं उनको ये पूछने गया कि क्या टिप्स हैं आपकी कि जो वैवाहिक जीवन है वो सफल रहे, उसके लिए क्या टिप है। तो उनकी वाइफ ने जो कहा वो ये था कि डोंट टेक हर फॉर ग्रांटेड, कि मतलब उसको आप ऐसा मान के मत चलना कि ये ऐसा ही करेगी या तो ऐसा इसको करना ही है, ठीक है। वो जो बात है ना, वो अब मन की तरफ लेके हम आ जाते हैं अगर, तो आप मन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करते। आप सोचे मैंने इतना प्राणायाम कर लिया, इतना अभ्यास कर लिया, इतने मैंने जो भी पाठ मैंने करता हूँ वो कर लिया है, और मैं तो बहुत ही शानदार मनुष्य हूँ, मतलब अपने तौर पर अपने स्वभाव को संयम से संचालित अपने को करने में मैं सफल हो गया हूँ। लेकिन कोई एक क्षण ऐसा आ सकता है, तो विश्वामित्र जी की बात आपने कही ऐसे उसको लेके, या जैसे अभी मैंने जो अब उदाहरण लिया इसका विल स्मिथ का, तो ये वैसे तो समझदार आदमी है, लेकिन उसने मन पर नियंत्रण उसका उस वक्त नहीं रहा। तो इसके दोनों पहलू है नारायण। एक पहलू तो ये है कि फिर हम क्यों करें, फेल तो हो ही जाएगा, कोई भी हो सकता है, तो मैं क्यों। एक तो वो हो गया, वो तो नकारात्मक चिंतन हो गया। दूसरा ये हुआ कि इतने बड़े लोग भी फेल हो सकते हैं, लेकिन मुझे प्रयास करना चाहिए और प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक कहते ना, वी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन आवर टोज। टोज का मतलब यहाँ पे ऐसे मतलब क्या कहते हैं, अपने को परेशान करने से नहीं, लेकिन एक सतर्कता जो मन की है वो, जैसे कि हम घर में रोज झाड़ू लगाते, अब यहाँ तो नहीं भी लगाते, यहाँ तो नहीं भी लगाते, कारपेट है तो नहीं लगा रहे, लेकिन फिर आपको वो वैक्यूम क्लीनर से उसको सफाई करनी पड़ती। उस तरह से कहते हैं मन जो है वो नियम से उसको हमें व्यवस्थित करने के लिए मन का जो आहार है वो उसको देना चाहिए। ऐसा आपका जो प्रश्न है वो इतना गहरा कि उसका उत्तर कोई है नहीं वैसे तो, लेकिन वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके साथ में प्रेरणा के बहुत सारे जो द्वार हैं वो खुल रहे हैं। कि ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम इससे ऊपर हैं, तो समझिए वो हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसा हो जाता है। और देखिए कई कथाएं ऐसी आती है जिसमें पता लगता है कि वो तो अहंकार से ग्रस्त होकर उन्होंने अमुक को श्राप दे दिया। जैसे जो श्रीमद् भागवत का जो शुरुआत है, तो वो उनके बेटे ने पहले तो उन्होंने कहा मैं आया, मेरे सामने आप खड़े नहीं हुए, राजा ने ऐसा कह दिया, तो वो मरा हुआ सर्प उनके उसमें डाल दिया। फिर उसके उनके पुत्र ने इनको श्राप दे दिया। तो अब इसमें दोनों बातें हैं। इसमें सीख ये लेनी है कि हमको सतर्क इसलिए रहना जरूरी है क्योंकि अगर हम स्खलित हो गए तो ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये कथाएं उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि रही हुई। और इसमें ऐसे प्रसंगवश मुझे याद आ गया, तो शिशुपाल का और श्री कृष्ण वाला जो संदर्भ आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि इसकी 100 गलतियां होंगी तब तक तो मैं माफ करूंगा। फिर उनका काउंटर चलता रहा तो जब 100वीं गलती हो गई तो चलो खत्म हो गया। तो अब इसमें कृष्ण भगवान को हम अगर ऐसे योगी के रूप में देखें तो उनको गुस्सा आ रहा था, वो गलती कर रहा था, इनको पता था, पर वो उसको नियंत्रित रखते रहे जब तक उन्होंने सोचा था। और ये सोचा था कि अब 100वीं होगी तो फिर काम खत्म हो जाएगा, तो हो गया फिर ऐसा। तो मयूर भाई आपका जो प्रश्न है इसका मैं एक बार पुनः आपको यूं धन्यवाद देता हूं कि ये मेरे अंदर चलता रहेगा। ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, तो धन्यवाद। नहीं, वो विल स्मिथ के लिए तो ऐसा है सर, हमने स्टडी किया उसका माइंड, तो उसका प्रेम है ना, जो उसके वाइफ के प्रति जो प्रेम है ना, वो ऊपर उठा। वो दबी जो वो बोला ना क्रिस बोला वो उसका फ्रेंड है, ये है ना, ये उसकी वाइफ है, तो उसकी वाइफ के उसका प्रेम और बढ़ा, इसलिए वो थप्पड़ मार के वो वहां जाके स्टेज पर जाके उसने कुछ नहीं देखा अपना, वो उसके जाके वो उसको थप्पड़ लगा दिया। ये हमारा स्टडी ऐसा है। नहीं, मयूर भाई ऐसे स्टडी करने के बाद में भी वहां पहुंचना पड़ेगा जहां उसको जस्टिफाई यूं नहीं कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि मन उनके वश में नहीं रहा, क्योंकि उनको ये पता नहीं लगा
कि इस समय मैं इस प्रेम को इस तरह व्यक्त करूं या उसको बाद में समझा दूं कि भाई ऐसा नहीं कहना, इसके ये है, मैं प्रेम से समझा देता। ये दोनों जानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जानते हो एक दूसरे को। और वहां जाके उस समय इस तरह से उद्वेलित हो जाना, जैसे कबीरदास जी कह रहे थे ना, वो पानी भी है और आग भी है मन, तो वो पानी की तरह थोड़ा जल्दी उत्तेजना में आ गए। तो मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा कि आपने उनके बारे में अध्ययन किया वो ठीक है, पर ऐसे हर एक आदमी के पास में जो आचरण वो करता है उसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होता है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है, वो दूसरों को लगता है कि नहीं तो गड़बड़ी था एकदम। या दूसरों को लगता है सर। जी, धन्यवाद धन्यवाद। Yes, Nalini Ben. प्रणाम अशोक जी। प्रणाम आपको।